वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अमाउंट ऑफ इलिटरेसी इन कांग्रेस इज अनबिलीवेबल, सुब्रमण्यम स्वामी ठग लाइफ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो और पता करते हैं क्या एग्जैक्टली उन्होंने बोला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। Please, you conclude now. Your time will be over. So most of them are illiterates. What can I do? Please continue. Okay, Mr. Rangarajan. Congressmen should learn. Please learn some Sanskrit shlokas. Your brain will improve. Google is for you, not for me. I'm an eyewitness. Where is the chair? I'm an eyewitness. Google is for idiots like you. Now, the question being raised frequently is between Tamil and Sanskrit. Well, it doesn't matter. I went to an Italian school. So go. You are not permitted to speak. Nothing will go on record. You please speak. Your leader is Italian. Please. Your leader is Italian. please So you speak. have a fixation with Please this, address the not chair. me. Mr. Vaiko should not speak. His original name was Vai Gopal Swami, which is a Sanskrit word. Please. Now he is. Please. Karunanidhi's name is Sanskrit. Ramaswamy Nayaka his name is from Sanskrit. They can't get names from anywhere else. And Vaiko is Vai Gopal Swami is now hiding behind Vaiko. गुड वन, बड़ा अच्छा बताया। अब हंस रहे हैं जब पकड़े गए। Please, you conclude now. Your time will be over. So most of them are illiterates. What can I do? Please continue. Okay, Mr. Rangarajan, nothing will go on record. Please conclude now. Please. So therefore, in conclusion, I request our minister that now that a central university has been created, let him ensure that every Kendriya Vidyalaya has an option to learn Sanskrit, whether it is in Tamil Nadu or is in Kashmir. अरे वाह, And yes, option only. And थोड़ी कोई किया। there's also a very easy way to learn Sanskrit, and that is from Samskrita Bharati, which can teach you to speak a few sentences of Sanskrit in just 10 days. So these agencies should also be incorporated and seen that the spread of Sanskrit is Very nice. as quickly as possible, and that in all our languages we use a maximum number of Sanskrit words because that will unite the country. Devanagari is not Hindi, as many people who are not well read are saying. Devanagari script Please conclude now, Mr. is used by Hindi, it is used by Marathi, it is used by Nepali, and I think if all milestones in our country have Thanks, Dr. Devanagari Swami now. script, Please it conclude. will be very easy for people to travel from Thank north you. and south. Thank you. Therefore, now onwards, let us develop the Sanskrit language with full vigor, without any hesitation. Thank you. गुड। तो फ्रेंड्स, बताओ कैसा लगा? मुझे तो बड़ा मजा आया। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, इतने क्वाइट और शांत स्वभाव और सॉफ्ट स्पोकन है ये कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इतने ब्लंट होके वो बोलेंगे। और जिस तरह से उन्हें, मेरे को एक तो वो बड़ी अच्छी बात लगी जो उन्होंने कहा, ऐसे लग रहा है वहां से वो अपोज कर रहे थे कि संस्कृत जो है, और वो भी ऑप्शनल। मजे की बात है, आगे जब वीडियो देखा तो पता चला कि उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें
पूरे इंडिया के अंदर जहां पे भी हैं वहां पे ऑप्शनल संस्कृत होनी चाहिए कि अगर किसी को पढ़नी है, पढ़ना चाहता है, उसका मन है, तो वो संस्कृत पढ़ सके, वो मिल रही हो वहां पे, क्लास एक सब्जेक्ट हो। तो उसमें ऐसे लग रहा है कि वहां से जो ऑपोजिशन है उनको उसमें प्रॉब्लम हो रही है और वो अपोज कर रहे थे। तो जब वो अपोज कर रहे थे, और ऐसे लग रहा है शायद बेसिकली तमिलनाडु के लग रहे थे जो अपोज कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला है, तो फिर जो स्वामी जी हैं उन्होंने इतना अच्छा बोला, उन्होंने कहा आप अपने नाम देखो, और उन्होंने सबके नाम बोले और कहा कि आपके सबके नाम जो है संस्कृत नाम है। और उनमें से एक ने तो अपना नाम थोड़ा चेंज भी कर लिया, तो उन्होंने कहा आपका एक्चुअल नाम तो ये है, जिस आप तो छुपा के बैठ गए अपने नाम को, आपका जो एक्चुअल नाम है वो तो ये है, और वो संस्कृत, आप क्या बात कर रहे हो संस्कृत के अगेंस्ट, आपके सारे नाम ही संस्कृत में है, तो आप कैसे अपोज कर रहे हो, आपके पास आपको कोई और नाम पता भी नहीं था, आपने संस्कृत के नाम लिए हुए। तो काफी अच्छा था, मेरे को भी लगा अरे वाह, हमें तो ये भी नहीं पता था। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि आपको संस्कृत अगर ऑप्शनल कर रहे हो उसमें अपोज करने का क्या प्रॉब्लम है, वो तो करने का मतलब ही नहीं बनता। पर जो सबसे मजेदार बात थी ना, जब उन्होंने बोला कि भाई आप जल्दी जल्दी खत्म करो अपनी बात क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, कंक्लूजन करो, तो बेचारे जो सुब्रमण्यम स्वामी है ना, वो कहते मैं क्या करूं, मैं कैसे जल्दी काम खत्म, बात खत्म करूं, जब मोस्ट ऑफ द जो वहां बैठे वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, गंवार है, तो उनको समझाने में टाइम लगता है। वो बड़ा मजेदार था, वो क्या कमाल का बोला है। ये जो उनका जो वो है ना बात करने का, ये मैंने इनका पहली बार ही देखा है। और एक और जो उन्होंने बोला था कि मैं तो इटालियन स्कूल में पढ़ा हूँ, मतलब मजाक कर रहे थे, छेड़ रहे थे उनको, और उसके बाद कहा कि आपका तो लीडर ही इटली का है, तो आपको फिक्सेशन है इटली से या बाहर से, हम मुझे नहीं है। तो काफी अच्छा था, छोटा सा क्लिप था, बड़ा मजेदार था। और जो सुब्रमण्यम स्वामी सच्ची में उनकी ये ठग लाइफ है, और मैंने उनको इस टाइप में इस वे से कहीं नहीं देखा। और ऐसी क्लिपिंग्स होना तो जरूर शेयर करना, बड़ी मजेदार थी। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें बहुत ही अच्छी बात की है कि संस्कृत को लेके आ रहे हैं, अभी भी संस्कृत है मेरे ख्याल से, मगर एटलीस्ट हमारे तक होती है। हमारे स्कूल में संस्कृत थी एज अ ऑप्शनल थर्ड लैंग्वेज, मगर ये है कि लोग जो भी लेते थे वो इसलिए लेते थे कि रट्टा मार लेंगे और मार्क्स काफी हाई आएंगे। नहीं, 8th तक तो कंपलसरी होती हाँ, थी शायद, बस। और उसके बाद 8th के बाद आपको यहाँ संस्कृत ले लो या हिंदी ले लो, उसमें से 2 चॉइस होती थी। राइट। मैंने ली थी संस्कृत। राइट, तो मतलब संस्कृत में जब भी, पहली बात तो ये है कि हमारे स्कूलों में संस्कृत थी, अगेन चलो 8th स्टैंडर्ड तक संस्कृत थी, मगर जो भी बच्चे संस्कृत ले रहे थे उनको बोलनी नहीं आती थी। नहीं आती मुझे, वो सिर्फ रट्टा मार के क्वेश्चंस आती। ऐसे आते थे कि आपका इंटरप्रिटेशन नहीं था, आप ये लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। वो बच्चे जो घर से रट्टा मार के आते थे वही ऐसे लिख देते थे, टीचर ने समझाया ही नहीं था। और बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उसके बाद भी मैंने किसी को जिंदगी में उन लोगों को संस्कृत यूज करते नहीं देखा प्रॉपर्ली, या कभी भी यूज करते नहीं, बस खत्म हो गया, आगे बढ़ गए, चलिए एक सब्जेक्ट था, मार्क्स लेके आ गए, रट्टू तोता बन गए। मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि संस्कृत को ऑप्शनल जैसे बोल रहे हैं एंड तक रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको संस्कृत के करिकुलम को ऐसा चेंज करना चाहिए कि जो वही बंदा पास हो सकता है जो संस्कृत बोल सक रहा है, फ्लुएंट हो जाए। जो अगर आपने जो भी करा है कि भाई इतने पढ़ाई के बाद इतना बोल सकना चाहिए, अगर नहीं बोल पा रहा तो फेल कर दीजिए। मैं फेल हो जाती। हाँ वही, और उससे फिर लोगों को पता लगता कि जो सीरियस बच्चे हैं वही आते जिनको ये होता कि संस्कृत सीखनी है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे सीरियस नहीं थे, जो टीचर्स थे उन्होंने कभी भी ग्रामर को बताया ही नहीं कि कैसे क्यों बोल रहे हैं, हमको रट के पास होना पड़ रहा था, क्योंकि अगर हम रटेंगे नहीं तो हम फेल हो जाते। राइट, तो जो भी है आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप, जब आपका टेस्ट हो रहा है तो आपसे बात की जाएगी संस्कृत में, अगर आप वार्तालाप कर पाए संस्कृत में तो आप पास हैं, अदरवाइज फेल हैं। तो है। ऑफ कोर्स हर बात की वेटेज होगी, मगर अगर बातों में ही आप बिल्कुल ही जीरो हैं तब आपको पास नहीं किया जाएगा। फिर देखते हैं कितने मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे होती है, कितने डेडिकेटेड बच्चों को बोलने आती है। और ये ठीक वो सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि देखो भैया, अगर तुम हर जगह संस्कृत लगा दो तो तुम्हारी कॉमनैलिटी इंग्लिश के बदले संस्कृत बन जाएगी, वो यूनिटी भी आएगी पूरी इंडिया में। यही कह रहे हैं कि अभी कॉमन थ्रेड इंग्लिश है, उसको हटाओ, कॉमन थ्रेड संस्कृत बनाओ। और हमने भी ये बहुत पहले बोला था, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा और होता है। ड्रीम लगी थी कि हो नहीं सके। मुझे तो अभी भी ड्रीम लगती है, मगर आज की गवर्नमेंट सही पाथ पे है कि आप जो कॉमन बोलते हैं लैंग्वेज इंग्लिश है उसको हटा के कॉमन लैंग्वेज संस्कृत कर दीजिए,
तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड, मुझे लगता है कि हमारी थिंकिंग और आज की जो गवर्नमेंट आई है उनकी थिंकिंग बड़ी मैच करती है। हमारा बोलते ही कुछ ही टाइम में वो चीजें होती हैं। कमाल की बात है। कहीं हमारे वीडियोस तो नहीं देखते? क्या पता कोई देखता है। तो इसका आंसर वही है जो मैं हमेशा देता हूँ हाँ। कि हर एक के मन में कुछ 20-30 बातें जो करना चाहते हैं। हमें 30 बातें पता है, गवर्नमेंट को 30 बातें पता है, बहुत लोगों को 30 बातें, तो अब इन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो भी इंसान के माइंड में आता है कि संस्कृत हमारी इतनी बढ़िया लैंग्वेज थी, अब चली गई, तो दुख होता है। उसी तरह हमें दुख हो रहा है, हर इंसान को दुख हो रहा है जो एजुकेटेड है कि संस्कृत अच्छी थी, पूरी लूज हो गई। हम जब किसी नॉर्थ इंडिया में जो शादी वगैरह करते हैं, संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं, किसी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं। छोटा मोटा आपने लर्न किया हुआ तो स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, मगर आपको समझ जो कॉमनैलिटी है हिंदी के साथ वो आपको समझ आती है और कुछ नहीं आती। ऐसे पूरे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पंडित क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं है। जो हमसे बड़े थे उनको ज्यादा पता है, हमसे हमारे और दादा थे उनको ज्यादा पता था। जितने भी पुराने लोग हैं उनको हमसे ज्यादा पता था। दुख की बात है जैसे नीचे जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल जीरो पता है। तो बहुत अच्छा होगा अगर ये सब हो जाते हैं। यस फ्रेंड्स, तो होप है कि भाई जल्दी हो जाएगा। कमाल की बात है। और भी कुछ सोचेंगे जो हमें लगता है कि होना चाहिए और बोलेंगे, और कुछ महीनों में, ये मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर अंदर ये हमको सुनने को मिला है। तो 1 साल का देंगे टाइम और होप करेंगे कि वो भी पहुंच जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।